Assalamu alaikum. Assalamu alaikum everybody. Today we will talk about gastric tumors. Okay. Now let's begin the lecture. Gastric tumors are mainly divided into benign gastric tumors or gastric cancers or malignancies. Now first of all we will discuss about the benign gastric tumors, which are also known as gastric polyps. Now polyps are mainly the benign tumors which are present in the inside lining of the mucosal organs. Means जितने भी बॉडी के अंदर म्यूकोजा हैं, फॉर एग्जांपल ओरल कैविटी है, स्टमक है, इंटेस्टाइन्स हैं, उसके अंदर अगर कोई भी एक्सोफिटिक लीजन होगा, B9 एक्सोफिटिक लीजन होगा, उसको पॉलिप बोलेंगे. So the gastric polyps are the benign exophytic lesions which are projecting over the mucosal plane. This is lamina propria. Exophytic lesion over mucosal plane means they could be sessile, means attached with the lamina propria. They have broad base, or these polyps could be pedunculated, means they have a little stalk and a circular projection. So these are lesions which are projecting from the mucosal plane. Now, how they occur? They occur either from the epithelial or connective tissue hyperplasia due to chronic inflammation, or these are occurring as a result of hematoma, which are mucosal polyps due to any genetic aberration. अगर कोई जेनेटिक म्यूटेशन हुई है उसकी वजह से अगर म्यूकोजा के अंदर कोई पॉलिप्स बने हैं, these are known as hematoma, or these are neoplastic. So in benign tumors, the malignant transformation occurs, but the rate is less. What are the clinical features of gastric polyps? They cause pain, they can cause nausea, blood in stool. Not all the polyps cause blood in stool, only the polyps which are larger in size, which are larger than 1 centimeter, they cause blood in stool. They cause anemia. Now this is the classification of the gastric polyps, either epithelial or mesenchymal. जिनके आगे मैंने स्टार लगाया हुआ है वो इम्पॉर्टेंट पॉलिप्स हैं जो हम डिस्कस करेंगे. नंबर 1, हेमाटोमास. एज आई हैव टोल्ड यू, हेमाटोमास आर द gastric polyps
or any polyps in the mucosa which are caused by some which have syndromic association. कोई syndrome होगा या genetic aberration होगी जिसकी वजह से body के अंदर ये polyps होंगे, और सिर्फ एक ऑर्गन में नहीं होते. अगर फॉर एग्जांपल अगर पीट्स जेगर सिंड्रोम है तो उसके अंदर गैस्ट्रिक म्यूकोजा भी अफेक्ट होगा, उसके अंदर इंटेस्टाइनल म्यूकोजा भी अफेक्ट होगा, उसके अंदर स्किन भी अफेक्ट होगी. सिमिलरली अगर कोई और सिंड्रोम है, फॉर एग्जांपल फेमिलियल एडिनोमेटस पॉलिपोसिस, उसके अंदर भी मुख्तलिफ organs affect honge. So hematomas are polyps or adenomas which are caused by some genetic mutations. They have syndromic association and they have multiple sites. Then secondly we have hyperplastic or inflammatory polyps. As the name shows, इनके पीछे जो cause होगा वो gastritis या chronic inflammation या H. pylori ये cause है. तो अगर chronic cause है तो gastric mucosa के अंदर sessile या pedunculated polyps बनने शुरू हो जाएंगे. उनकी लोकेशन के हिसाब से उनको डिफरेंट नाम दिए गए हैं. कुछ को hyperplastic polyp दिया गया है which can occur in any portion of the gastric mucosa. कुछ का नाम fundic gland polyp दिया गया है which occur mainly on the fundus of the gland, and fundic gland polyps are associated with the long-term use of proton pump inhibitors. This is very important, and these fundic gland polyps are the most common इन्फ्लेमेटरी पॉलिप्स. सबसे ज़्यादा पॉलिप्स जो एंडोस्कोपी में इंसिडेंटली फाइंड आउट किए जाते हैं वो फंडिक ग्लैंड पॉलिप हैं, और इसका कॉज जो है वो प्रोलॉन्ग यूज ऑफ पीपीआई, prolonged use of proton pump inhibitors due to any गैस्ट्रिक एसोसिएशन. फॉर एग्जांपल गर्ड के लिए लोग यूज़ करते हैं, गैस्ट्राइटिस के लिए लोग जो हैं वो एंटासिड्स और पीपीआईज यूज़ कर रहे होते हैं. उसकी वजह से एसिम्टोमेटिक एंड समटाइम्स सिम्टोमेटिक पॉलिप्स बनते हैं विच आर फंडिक ग्लैंड पॉलिप्स. और जो पॉलिप्स एच पाइलोरी इन्फेक्शन से एसोसिएट हैं, दीज आर हाइपरप्लास्टिक पॉलिप्स. Then we have neoplastic polyps. अब neoplastic polyps को नाम एडिनोमा दिया गया है. Adenomas are actually those polyps in which there is abnormal gland proliferation in the gastric mucosa, और ये benign भी हो सकते हैं, but most of them these are pre-malignant, mean if these are not resected they can cause gastric cancer. सो इनको आप न्यू प्लास्टिक पॉलिप्स की हेडिंग में इसलिए डालेंगे बिकॉज एडिनोमस जो हैं वेरी वेरी रेयर है कि ये बिनाइन हो. मोस्ट ऑफ देम दे आर प्री मेलिग्नेंट, मीन्स इफ दीज आर नॉट रिसेक्टेड they can cause carcinoma of the stomach. Then we have carcinoma. We have carcinite polyps. Carcinite polyps are due to the abnormal proliferation of the neuroendocrine cells present inside the stomach. Then we have mesenchymal polyps in which हमारे सबसे important जो है वो है Menetrier disease. Then Zollinger-Ellison syndrome जो कि मैंने last lecture में आपको बताया था, which is also due to a neuroendocrine cell abnormal proliferation of the G cells of the GIT system causing gastrinoma. Now the important benign gastric polyps और pre-malignant gastric polyps के अंदर hematoma और adenoma. इनको मैंने highlight इसलिए किया है because they have tendency to become cancerous if they increase in size or they increase in number. अगर इनका size 2 सेंटीमीटर से बढ़ जाए या इनका नंबर 15 to 20 polyps से ज़्यादा हो जाए तो they have tendency to become, they must be biopsied. इनको एंडोस्कोपी होनी चाहिए, इनकी बायोप्सी होनी चाहिए to see if they have cancerous changes. इसके अलावा hyperplastic and inflammatory polyps मैंने आपको बता दिया, they can found they are mainly associated with the H. pylori infections. all over the stomach में होता है but mostly in the antrum because antrum के अंदर ही
हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था गैस्ट्राइटिस सबसे ज्यादा एंट्रम के अंदर शो होता है. इसके अलावा वी हैव फंडिक ग्लैंड पॉलिप्स विच आर द मोस्ट कॉमन पॉलिप्स फाउंड इन द गैस्ट्रिक म्यूकोजा, और इनका जो कॉज है वो प्रोलॉन्ग यूज ऑफ पीपीआई. अच्छा, these are the gastric polyps, how they look like. fundic gland polyps, it is, मैंने बताया कि कुछ peduncle होते हैं, they have a little stalk and then they have a circular proliferation. Then we have uh, uh, sessile polyps, इनके साथ साथ कोई pedunculated stalk नहीं होता. Then there are adenomas which are abnormal proliferation of the glandular epithelium. फिर इन एडिनोमस की डिफरेंट शेप्स हैं, आइदर दीज आर ट्यूबुलर, स्मॉल विलाई हैं इसमें, और दीज आर ट्यूबुलर along with small villi. So these are actually the different shapes. इसके अलावा भी कई डिफरेंट शेप्स हैं, बट मैंने मोस्ट कॉमन आपको बताई हैं. इसके अलावा दिस इज सिसाइल पॉलिप्स, ये नॉर्मल एपिथेलियम है, और आप इन बिटवीन देखें कि जो एपिथेलियम है उसका साइज इंक्रीज हो गया है. सो दिस इज हाइपरप्लास्टिक, दिस इज what occurs in hyperplastic polyps. एडिनोमस के अंदर देयर इज एबनॉर्मल प्रोलिफरेशन ऑफ द ग्लैंड्स. ये जो आपको बीच में वाइट सर्कल्स नजर आ रहे हैं, these are abnormal proliferation of the glands. Then we have adenomas. This is sessile adenoma, this is pedunculated adenoma, and this is sessile and villus. Small villi-like projections over the adenoma, they form sessile adenoma. So we have different shapes of hyperplastic polyps, we have different shapes of adenomas. Either these are sessile, or these are pedunculated, or they have villi, they have villus, or they have combination of two. Now this is normal epithelium. हाइपरप्लास्टिक में सिर्फ साइज इंक्रीज हो रहा है, एडिनोमा में एबनॉर्मल प्लोरिफलेशन एंड लेटरल एक्सटेंशंस ऑफ द ग्लैंड हैं. जो नॉर्मल ग्लैंड है उसकी शेप एलोंगेटेड है, बट अगर यही ग्लैंड इसकी एबनॉर्मल लेटरल प्रोजेक्शंस हो, या यहाँ से ये टूट टूट के एक नया ग्लैंड बनाना शुरू कर दे, तो इट मीन्स दे आर कन्वर्टिंग इनटू एडिनोमास. जो हमने सिंड्रोमिक एसोसिएटेड पॉलिप्स पढ़े, उसके अंदर मेन सिंड्रोम्स जो हम देखेंगे वो हैं जुवेनाइल पॉलिप, then we have juvenile polyposis syndrome, we have Pearce-Jaeger syndrome, we have Cowden disease. This is their morphology. अगर हम इनकी ग्रॉस मॉर्फोलॉजी देखें तो all of them look similar, लेकिन अगर हम इसकी genetic aberration देखें तो they have different abnormalities in different genes. For example, this is Pearce-Jaeger syndrome. इसके अंदर आपको गैस्ट्रिक म्यूकोजा के अंदर, इंटेस्टाइनल म्यूकोजा के अंदर पॉलिप्स नजर आएंगे, एडिनोमास नजर आएंगे, प्लस इसके अंदर स्किन के अंदर आपको हाइपर पिगमेंटेशन नजर आएगी. एंड द कॉज ऑफ द जेनेटिक एंड जो जीन म्यूटेटेड है, इट इज STK11 जीन. फिर जुवेनाइल पॉलिप के अंदर हमें एज डिफरेंस मिलता है, 2 to 5 ईयर ओल्ड चाइल्ड के अंदर पाया जाएगा, 2 to 5 इन नंबर हो सकता है. देन इन FAP means familial adenomatous polyposis. This is another syndrome जिसके अंदर हमें मल्टीपल मे बी हंड्रेड्स ऑफ पॉलिप्स इन द म्यूकोजा नजर आते हैं. इनके भी आप देखें ग्रॉस मॉर्फोलॉजी इज सिमिलर टू अदर सिंड्रोमिक पॉलिपोसिस, बट जो जीन म्यूटेटेड है दैट इज APC. देन दिस इज जुवेनाइल पॉलिपोसिस. इसके अंदर हमें
जुवेनाइल पॉलिप के अंदर हमें 2 to 5 पॉलिप्स मिलेंगे विच आर इजीली रिसेक्टेबल, बच्चे की एज कम होगी। इसके अंदर हमें एडल्ट के अंदर पॉलिप्स मिलेंगे, दीज मे बी 20 और 30 इन नंबर, और इनके अंदर प्री मेलिग्नेंट चेंजेस नजर आएंगी और कॉजेटिव जीन जो है दैट इज डिफरेंट। सो दीज आर द लिस्ट ऑफ syndromes which have gastric polyps. इसके अलावा हमने देखा है कि एडिनोमास होते हैं विच हैव डिफरेंट शेप्स, मैंने आपको बताई, सिसाइल हो सकती है, विलस हो सकती है, ट्यूबुलर हो सकती है, और कॉम्बिनेशन के अंदर ट्यूबलोविलस हो सकती हैं। एडिनोमास जो हैं दीज आर दे आर ऑल्सो, अगर बेनाइन हो तो फ्यू मिलीमीटर टू 1 सेंटीमीटर होंगे, और एनी एडिनोमा और पॉलिप विच इज greater than 2 centimeter, it must be biopsied. They have malignant potential. इनके अंदर भी, बाकी 2 पॉलिप्स के अंदर भी मेलिग्नेंट पोटेंशियल है, बट चांसेस बहुत कम होते हैं। बट एडिनोमास इसके मेलिग्नेंट ट्रांसफॉर्मेशन के चांसेस ज़्यादा हैं। मोस्टली एडिनोमास सॉलिटरी हो सकते हैं, मल्टीपल भी होते हैं, एनी पार्ट ऑफ द स्टमक और एनी पार्ट ऑफ द जीआईटी में पाए जाते हैं। हाइपरप्लास्टिक पॉलिप्स मैंने आपको बताया कि इनके कॉज में एच पाइलोरी इन्फेक्शन हो सकती है। अगेन दीज कुड बी सिसाइल पेडंकुलेटेड, साइज इनका 1 सेंटीमीटर से कम है, देन देयर इज नथिंग टू वरी अबाउट। एंट्रम में ज्यादा होते हैं, सिंगल मल्टीपल हो सकते हैं। गैस्ट्राइटिस इनके कॉजेटिव फैक्टर्स के अंदर है। फंडिक पॉलिप्स के अंदर स्पोरेडिक कॉज भी हो सकता है, और फेमिलियल जो सिंड्रोमिक कॉजेज भी हो सकते हैं। स्पोरेडिक कॉजेज के अंदर हमें पीपीआई, प्रोलॉन्ग यूज ऑफ पीपीआई मिलते हैं। अगेन दे हैव their size is less than 1 centimeter. अगर less than 1 centimeter है then mostly these are asymptomatic, nothing to worry about. जैसे ही PPI का यूज छोड़ेंगे ये खुद ही वैनिश हो जाते हैं। मोस्टली कार्डियक एरिया में और फंडक एरिया में होते पाए जाते हैं। अच्छा, डरना हमें कब है? अगर पॉलिप्स का साइज जो है 2 सेंटीमीटर से बढ़ जाए, 20 इन नंबर से बढ़ जाए, देन वी हैव टू वरी। This is the gross morphology and microscopic pictures of fundic polyp, hyperplastic polyp and adenoma. This is fundic polyp. Fundic polyps mostly sessile होते हैं, और इसके माइक्रोस्कोपिक में हम क्या देखते हैं कि there are cystically dilated glands. This is very important. Cystically dilated glands हमें मिलते हैं, ठीक है। जितनी भी white spaces हैं, these are cystically dilated glands along with normal glands. अच्छा, इसके अलावा ये वाला हाइपरप्लास्टिक पॉलिप है। हाइपरप्लास्टिक पॉलिप भी सिसाइल और पेडिंकुलेटेड हो सकता है। इसमें आप ये देखें, दिस इज नॉर्मल गैस्ट्रिक म्यूकोसा, ये वाला दिस इज नॉर्मल गैस्ट्रिक म्यूकोसा, दिस इज हाइपरप्लास्टिक म्यूकोसा, ठीक है। और ये जो इसके यहाँ पर है, दिस इज स्टॉक, जहाँ से इसकी नरिशमेंट मिलती है। नाउ दिस इज एडिनोमा। एडिनोमा में आप देखें, अगेन दिस इज पेडिंकुलेटेड एडिनोमा, और ये थोड़ा सा अल्सरेटेड भी है। अच्छा, इसमें आप ये देखें कि दीज वर द नॉर्मल ग्लैंड्स, ये नॉर्मल ग्लैंड्स जा रहे हैं। फिर एक पॉलिप जो बना है, इसके अंदर एबनॉर्मल प्रोलिफरेशन ऑफ द ग्लैंडुलर एपिथेलियम हो गई, यानी एक ग्लैंड जो है वो छोटे 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 ग्लैंड्स और बनाना शुरू हो गया है। नाउ कमिंग टुवर्ड्स द गैस्ट्रिक कैंसर्स, what happens in gastric cancers? Most common gastric cancers are known as adenocarcinomas. Adeno means glandular epithelium, means abnormal glandular epitheliums का कैंसर, और इनके प्रीकर्सर लीजन में मोस्ट ऑफ द टाइम एडिनोमास होते हैं। ये एडिनोमास जो हैं, ये मोस्ट ऑफ द टाइम दे लीड टू एडिनोकार्सिनोमास। Then we have lymphomas. Lymphomas जो होते हैं, these are actually atypical B lymphocytes which are found in the gastric submucosa. जब भी prolonged infection होती है, mostly due to H pylori, तो उसके अंदर B lymphocytes प्रोलिफ्रेट करते हैं। लेकिन अगर उनके अंदर एबनॉर्मल या एटिपिकल प्रोलिफ्रेशन हो जाए, these are they caused lymphomas. Then we have leiomyosarcomas, which are abnormal proliferation of the smooth muscular layer of the gastric mucosa. Then we have GIST. GIST जो हैं, these are gastric
gastrointestinal stromal tumors. Then we have carcinoid tumors, which are due to abnormal proliferation of the neuroendocrine cells such as G cells. गैस्ट्रिक कार्सिनोमा में मैंने आपको बताया मेजॉरिटी ऑफ द गैस्ट्रिक कैंसर्स आर एडिनोकार्सिनोमास, and these are actually epithelial tumors. They have abnormal glandular proliferation or differentiation. इनके symptoms के अंदर नॉर्मल गैस्ट्रिक सिम्टम्स ही नजर आते हैं. फॉर एग्जांपल डिस्पेप्सिया, डिस्फेजिया, नोजिया. And most of these gastric carcinomas, they have poor prognosis. इनका cause ये है कि these are most of the times they remain asymptomatic. और जब ये symptomatic बनते हैं तब ये बिल्कुल लास्ट स्टेज में पहुंचे होते हैं. इटियोलॉजी में इनका सबसे जो मेन इटियोलॉजी है दैट इज यूज ऑफ प्रिजर्व्ड फूड, लेस यूज ऑफ वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स और प्रिजर्व फूड या कैंड फूड का ज्यादा इंटेक. देन बाइल रिफ्लक्स, ऑफ कोर्स एच पाइलोरी, chronic infections of H. pylori, untreated H. pylori infections. और इनके स्टेप्स के अंदर क्या होता है, सबसे पहले गैस्ट्राइटिस, देन इट बिकम्स क्रॉनिक गैस्ट्राइटिस, इट कॉजेस मल्टीफोकल एट्रोफी. देन जो एट्रोफिड रीजन है वहाँ पर इंटेस्टाइनल एपिथेलियम, मेटाप्लास्टिक इंटेस्टाइनल एपिथेलियम आ जाता है विच कॉजेस इंट्राएपिथेलियल न्यूप्लेसिया. Now these are another symptoms of gastric cancers. Most of the time asymptomatic हैं, लेकिन अगर symptomatic हों तो they cause, if they involve the nerve, they cause pain, they cause hiccups, they cause early satiety, weight loss, and sometimes they cause ulceration or bleeding. This is how the gastric cancers are spread to other organs. Direct spread अगर होगा तो adjacent organs में होगा, पैंक्रियास, कोलोन, लिवर. ब्लड बॉर्न मेटास्टेसिस होगा तो अगेन लिवर, लंग, बोन. लिम्फेटिक स्प्रेड विर्को नोड्स में होगा. ट्रांसपेरिटोनियल के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट हमें क्रूकनबर्ग ट्यूमर, दिस वन, इसमें हमें ओवरीज के अंदर अगर मेटास्टेटिक स्प्रेड ऑफ गैस्ट्रिक कैंसर हो तो हमें गैस्ट्रिक एपिथेलियम या एबनॉर्मल गैस्ट्रिक सेल्स मिलते हैं. Now coming towards the morphology, किस तरह नजर आता है गैस्ट्रिक कैंसर. फेवर्ड लोकेशन इसकी लेसर कर्वेचर ऑफ द स्टमक. अब गैस्ट्रिक कार्सिनोमा की मॉर्फोलॉजी को हम तीन तरह से देखते हैं, कितना डीप इन्वेड हुआ है, ग्रोथ पैटर्न क्या है, और कौन सी हिस्टोलॉजिकल सब टाइप है. ग्रोथ पैटर्न में या एक्सोफिटिक ग्रोथ है, पॉलीपाइड ग्रोथ है, फ्लैट ग्रोथ है, एक्सकवेटेड या अल्सरेटेड ग्रोथ है. दिस इज ऑल्सो एक्सोफिटिक. दिस इज लिनिटस प्लास्टिका, जिसके अंदर गैस्ट्रिक एपिथेलियम जो है वो लेदरी इन कंसिस्टेंसी हो जाता है, हार्डन इन कंसिस्टेंसी हो जाता है. दिस इज ऑल्सो एक्सकवेटेड. तो दीज आर द डिफरेंट ग्रोथ पैटर्न्स. ये हमें गैस्ट्रिक कार्सिनोमा में नजर आ सकती हैं. नाउ अर्ली गैस्ट्रिक कैंसर, इट हैज एक्सोफिटिक ग्रोथ, सिर्फ म्यूकोजा को इन्वेड किया है, और इट हैज अल्सरेशन, इसमें भी सिर्फ म्यूकोजा को ही इसने इन्वेड किया है, और पॉलीपाइड ग्रोथ, इसमें भी सिर्फ म्यूकोजा तक ही इसकी ग्रोथ हुई है और सब म्यूकोजा लेयर इन्वेड की है. देन एडवांस गैस्ट्रिक कैंसर इज अगेन एक्सोफिटिक और अल्सरेटेड. नाउ इट हैज इनफिल्ट्रेटिंग टाइप. इनफिल्ट्रेशन का मतलब एक चीज होती है वर्टिकल ग्रोथ, वर्टिकल ग्रोथ तो हो रही है, इनफिल्ट्रेशन का मतलब है लेटरल प्रोजेक्शंस बनना, हॉरिजॉन्टल ग्रोथ. तो एडवांस गैस्ट्रिक स्टेज में हमें वर्टिकल ग्रोथ के साथ साथ लेटरल ग्रोथ भी मिलती है,
और डीपर लेयर्स ऑफ द गैस्ट्रिक एपिथेलियम इन्वेड हो रही हैं। फिर हमने हिस्टोलॉजिकल टाइप्स में अगर देखें तो हमें गैस्ट्रिक म्यूकोजा के 3 मोस्ट कॉमन टाइप्स मिलते हैं। इसके अंदर इंटेस्टाइनल टाइप सबसे कॉमन है। इंटेस्टाइनल टाइप के अंदर कॉजेटिव स्टेप्स के अंदर अगर हम जाएं तो हमेशा हमें एच पाइलोरी इन्फेक्शन मिलती है। एच पाइलोरी के बाद हमें इंटेस्टाइनल मेटाप्लेजिया मिलता है। इंटेस्टाइनल मेटाप्लेजिया इट कॉजेज इंटेस्टाइनल एडिनोकार्सिनोमा। इसके अंदर हमें अल्सरेशन, एक्सोफिटिक ग्रोथ मिलेगी। माइक्रोस्कोपिक पिक्चर्स के अंदर हमें इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स मिलेंगे। देन वी हैव डिफ्यूज टाइप। नाउ डिफ्यूज टाइप का अभी तक कोई भी कॉजेटिव एक स्पेसिफिक कॉजेटिव एजेंट नहीं पता चला, कोई भी कॉजेटिव फैक्टर नहीं पता चला। इसके अंदर हमें डिफ्यूज एबनॉर्मल गैस्ट्रिक ग्लैंड्स मिलेंगे, डिफ्यूज गैस्ट्रिक सेल्स मिलेंगे जिनका शेप जो होगा वो सिग्नेट रिंग की तरह होगा। सिग्नेट रिंग शेप इसलिए होगा कि न्यूक्लियस एक साइड पे पुश हो चुका होगा और उसका बाकी के सारे सेल के अंदर साइटोप्लाज्म एक्यूमुलेटेड होगा। डिफ्यूज टाइप जो है इसकी पुअर प्रोग्नोसिस है। इंटेस्टाइनल टाइप जो है इसकी बेटर प्रोग्नोसिस है। देन थर्ड टाइप जो है इट इज रेयर टाइप लिनिटस प्लास्टिका, जिसके अंदर जो गैस्ट्रिक रूगी हैं वो वैनिश हो जाते हैं और लेदर लाइक स्ट्रक्चर ऑफ द गैस्ट्रिक म्यूकोजा नजर आता है। नाउ दिस इज अगेन द डिफरेंस बिटवीन इंटेस्टाइनल एंड डिफ्यूज टाइप। एज आई हैव टोल्ड यू कि इसके रिस्क फैक्टर्स के अंदर एनवायरमेंटल रिस्क फैक्टर्स हैं, फॉर एग्जांपल एच पाइलोरी, प्रोलॉन्ग यूज ऑफ प्रिजर्व्ड और कैंड फूड्स, बेटर प्रोग्नोसिस है और कोई फैमिली हिस्ट्री नहीं है। बट डिफ्यूज टाइप के अंदर हमें डिफ्यूज सिग्नेंट सेल्स मिलते हैं और इसमें पुअर प्रोग्नोसिस है। अगेन दिस इज अ डिफरेंस बिटवीन इंटेस्टाइनल एंड डिफ्यूज टाइप। एच पाइलोरी मेटाप्लेजिया इन इंटेस्टाइनल टाइप या क्रॉनिक गैस्ट्राइटिस मिल सकता है, एट्रोफी मिल सकती है। HER2 न्यू म्यूटेशंस, दीज आर जीन्स जिनकी म्यूटेशन नजर आती है। दिस इज ए वेल डिफरेंशिएटेड ट्यूमर। वेल डिफरेंशिएटेड इस सेंस में कहेंगे कि हमें वेल डिफरेंशिएटेड इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स नजर आते हैं। इसके अंदर सिग्नेट रिंग सेल्स नहीं होती, ग्लैंड फॉर्मेशन होती है, बेटर प्रोग्नोसिस है। डिफ्यूज टाइप के अंदर हमें there is no significant cause behind it, no precursor lesion, E cadherin mutations नजर आती हैं, poorly differentiated signet ring cells हैं, gland formation नहीं है, and overall this type of carcinoma, adenocarcinoma, has poor prognosis. This is Linitus plastica, as I have told you कि stomach जो है thickened हो जाता है और leathery consistency होती है। Now these are प्री मेलिग्नेंट डिजीजेज ऑफ द स्टमक। इनको सिर्फ आप एक दफ़ा देख लीजिएगा, दीज आर वेरी रेयर। इसके अंदर होता क्या है कि जो गैस्ट्रिक फोल्ड्स हैं वो एबनॉर्मली प्रोलिफरेट हो जाती हैं। ये आप देखें, एबनॉर्मल एंड सिस्टिकली डायलेटेड फोल्ड्स ऑफ द गैस्ट्रिक म्यूकोजा। और इस डिसऑर्डर के पीछे जो रीज़न है दैट इज़ एक्सेसिव सिक्रीशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर। इसके साइंस एंड सिम्टम्स में हमें हाइपोप्रोटीनीमिया मिलता है और इसके अलावा एसिडिक फॉर्मेशन नहीं होती। Then we have carcinoid tumors which are due to the abnormal proliferation of the neuroendocrine cells. These are the neuroendocrine cells, round and single nucleus uniform cells होते हैं, इनकी abnormal proliferation होती है। These tumors are they have good prognosis if these are resected timely. Then we have gastrointestinal stromal tumors. Again ये mesenchymal tumors हैं, rare हैं, and these are thought to grow from specialized cells which are known as interstitial cells of Kajal. These are the features of GIST or gastrointestinal stromal tumors. G for gastric, I for interstitial cells of Kajal, S for spindle masses of
submucosal masses, ये नजर आ रहे हैं spindle cells, and this is the gene which is mutated in GIST. Now ZD syndrome मैंने आपको पहले भी लास्ट लेक्चर में भी बताया था, ड्यू टू द एबनॉर्मल प्रोलिफरेशन ऑफ न्यूरोएंडोक्राइन सेल्स, फॉर एग्जांपल जी सेल्स. जी सेल्स बहुत कम होते हैं स्टमक में, बट इफ दीज आर और इनकी ज़्यादा पॉपुलेशन होती है पैंक्रियास में. अगर these if these are abnormally proliferated, they form tumors which are known as gastrinomas. Gastrinomas are the abnormal G cells proliferation which increase excessive amount of gastrin. इनमें होता क्या है, पेप्टाइड होता है, पेप्टिक अल्सर का, एब्डोमिनल पेन, डायरिया, and these are also resectable. Then lymphomas मैंने आपको बताया, these are also tumors caused by the proliferation of atypical B lymphocytes, और कॉज यही होता है, H पाइलोरी इन्फेक्शन हुई, अनट्रीटेड रही, B सेल्स उन आर प्रोलिफरेटिंग टू किल द H पाइलोरी, लेकिन उनकी एबनॉर्मल प्रोलिफरेशन की वजह से दे कॉज माल्टोमा. कॉम्प्लिकेशंस और पैरान्यूप्लास्टिक सिंड्रोम्स ऑफ द गैस्ट्रिक कैंसर्स. जब भी गैस्ट्रिक कैंसर होगा, एडिनोकार्सिनोमा होगा, तो हमें कुछ पैरान्यूप्लास्टिक सिंड्रोम्स मिलेंगे. पैरान्यूप्लास्टिक सिंड्रोम्स क्या होते हैं? दीज आर कॉज्ड बाय द एबनॉर्मल प्रोलिफरेशन ऑफ द ट्यूमर सेल्स. इसके अंदर हमें सिबोरिक केराटोसिस मिलेगा, हाइपर पिगमेंटेशन ऑन द स्किन मिलेगी, पॉलीआर्ट्राइटिस निडोसा मिलेगा, जिसकी वजह से जो स्मॉल और मीडियम साइज आर्टरीज हैं उनको उनकी ऑब्स्ट्रक्शन होने से किडनी फेलियर या मायोकार्डियल इन्फेक्शन हो सकता है. ट्रोजियो सिंड्रोम के अंदर हमें माइग्रेटरी थ्रोम्बोसिस, जगह जगह आर्टरीज के अंदर थ्रोम्बोसिस मिलता है, विच कैन इंटरफियर विद द कोआगुलेशन सिस्टम ऑफ द बॉडी. इसके अलावा जो गैस्ट्रोएसोफेजियल जंक्शन है उसमें स्ट्रिक्चर्स फॉर्म हो सकते हैं. दिस इज द रीजन कि हमें गैस्ट्रिक कैंसर के अंदर डिस्फेजिया, डिफिकल्टी इन स्वॉल्विंग नजर आती है. अच्छा, इन द लास्ट 2 क्विज मैंने बनाए हैं. नंबर 1, द पेशेंट इज 42-year-old मैन. उसको क्या हुआ है? एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट है, एनोरेक्सिया है. एनोरेक्सिया मीन्स कुछ खा पी नहीं रहा, वो वेट लॉस है 2 ईयर से. एसोफिजियो गैस्ट्रोड्यूडेनोस्कोपी के लिए गया, वहां पे ये देखा कि अल्सरेटेड मास है गैस्ट्रिक एंट्रम में, और बायोप्सी ने क्या दिखाया? अल्सरेशन के साथ सिग्नेट रिंग फीचर्स हैं. पैथोलॉजी क्या हो सकती है? गिस्ट हो सकता है, कार्सिनॉइड ट्यूमर है, डिफ्यूज एडिनोकार्सिनोमा और इंटेस्टाइनल एडिनोकार्सिनोमा. नंबर 2, 60-year-old male presented to गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी डिपार्टमेंट. किस वजह से गया है? एपिगैस्ट्रिक पेन है, हार्ट बर्न है, डिस्टेंशन है. फिजिकल एग्जामिनेशन और लैब टेस्ट नॉर्मल हैं. अल्ट्रासोनोग्राफी भी नॉर्मल है. एंडोस्कोपिक एग्जामिनेशन के अंदर कोई मसला नजर आया है? क्या नजर आया है? 2 सेंटीमीटर पॉलिप नजर आया है, उसकी लॉब्यूलेटेड सरफेस है, और नजर कहाँ पर आया है? गास्ट्रिक कार्पस में. माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन ने क्या दिखाया है? कि ग्लैंड्स हैं सिस्टिक डायलिटेशन के साथ. क्या हो सकता है? एडिनोकार्सिनोमा, हाइपरप्लास्टिक पॉलिप्स हो सकते हैं, फंडिक पॉलिप्स हो सकते हैं, या एडिनोमास हैं. इनके आंसर्स आप मुझे मेल कर दीजिएगा. थैंक यू सो मच. एनी क्वेश्चन? Any questions?